حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07857844116۔ اللہ وہ اتفاق سے وہاں ایئرپورٹ پہ چابی گم گئی اور وہ جو تھا گھنٹی بول گئی، تو وہ بولا بابا مولانا اس کے اندر کیا 2 نمبر کا مال ہے؟ یہ کیسے بول رہی؟ میں نے کہا ہاں 2 نمبر کا تو مال ہے، گھنٹی صحیح بولی، مگر وہ 2 نمبر کا مال نہیں جسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا وہابیوں کا مال ہے، یہ اس کو ہم 2 نمبر کا مال کہتے ہیں۔ گھنٹی تمہاری صحیح بولی اور چابی بھی غائب، اندر وہ گھنٹی بولے کہ کھول کے دکھاؤ کیا مال ہے بھائی۔ اللہ اللہ، تو ہم نے کھول کے بمشکل تمام کھولا تو وہ اٹیچی کھلی تو نکلا یہ ان کا یہ کیا؟ میں نے کہا لکھ کے مر کے جہنم چلے گئے، ہم لادے لادے پھر رہے ہیں۔ اللہ، یہ کتاب تذکرۃ الخلیل، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، یاد کرنے والوں یاد کرو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہو۔ صفحہ اس کا 96 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ 96 ہے۔ مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی ہے۔ کیا نام ہے؟ عاشق الہی میرٹھی۔ پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہو۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ صفحہ اس کا 96 ہے۔ یہ کس کی کہانی؟ مولوی الیاس کی نانی کی کہانی، خود ان کی کتاب کی زبانی۔ صفحہ 96۔ یہ دیکھو، اللہ اللہ، چہرہ کیوں اتر گیا؟ اور جب ایسا ہی تھا تو لکھی کیوں تھی؟ اور لکھی تھی تو چھاپی کیوں تھی؟ چھاپی تھی تو بیچی کیوں تھی؟ اب تو بریلوی نے خرید لی، تمہاری کتاب بریلوی استعمال کرے گا۔ اب اگر تمہیں درد تکلیف ہو تو اس کے ہمارے پاس کیا علاج ہے نا بھائی؟ جلسہ ہمارا، میک ہمارا، مجمع ہمارا، کتاب تمہاری، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، مگر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ دیکھ رہے ہیں صفحہ اس کا 96۔ مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی۔ چادت فرق ہے، چادت بدت ہے، معاذ اللہ۔ لکھتے ہیں بی امی کی عمر طویل ہوئی۔ یہ کون ہے؟ الیاس کاندیلوی کی نانی، جو تبلیغی جماعت کے بانی مبانی، ان کی نانی کی کہانی، خود ان کی کتاب کی زبانی۔ لکھتے ہیں انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا اور 3 سال کامل صاحب فراش رہی۔ اور کہنا چاہیے، لکھتے ہیں 3 سال مرد سال میں اس طرح گزری کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار تھا، یعنی دستوں پہ 10 کئے سال؟ 3 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئے سال؟ 3 سال بڑھیا پخانے پہ پخانا، دنا دن دنا دن دنا دن، کئے سال؟ 3 سال۔ امریکہ نے بڑی ترقی کی، مگر ابھی تک کوئی کیپسول نہیں ہے کہ اگر کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے۔ روس نے بڑی ترقی کی ہے، مگر ابھی تک کوئی ٹیبلیٹ نہیں ہے کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے۔ انناس کھاؤ، پخانے میں بدبو۔ آپ سنترا کھاؤ، پخانے میں بدبو۔ آپ ہینا اور مشکو اور امبر اگر کھا جاؤ اور پخانے میں جاؤ، بدبو بولو ختم ہوگی؟ ارے کیوڑا پی لو، پخانے میں جاؤ، بدبو، وہاں خوشبو نہیں آ سکتی۔ مگر آئیے ذرا دیکھیے محترمہ صاحبہ کو، ائی ہے ذرا دیکھیں، یہ ان کی نانی 3 سال پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا۔ بچے کا پخانا اور ہوتا اور بڑھیا کا پخانا اور ہوتا، اس میں بڑی بدبو ہوتی۔ لکھتے ہیں 3 سال مرد سال میں اس طرح گزری کہ کروٹ بدلنا دشوار تھا۔ اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی۔ خود ہی لکھ رہے ہیں کہ اس بڑھیا کے بستر کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ دھوبی کے یہاں بھی اگر ڈال دیں گے تو اس کے پخانے کی بدبو
नहीं जाएगी। मगर देखने वालों ने देखा गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतड़े निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे, तो उनमें बदबू की जगह खुशबू और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सुंघाता था, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है। मादल्ला बोलो जोर से, मादल्ला मादल्ला। आगे लिखते हैं हर मर्द औरत ताज्जुब करता था, मर्द भी ताज्जुब करते थे, औरतें भी ताज्जुब। इलाही ये औरत थी कि असगर अली का कारखाना थी। पहले से मालूम होता तो शीशी लगा के हम भी भर के ले जाते। लिखते हैं चुनांचे बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। ओ चिल्लो चिल्ली वाले, ये बुढ़िया का 3 साल का पखाना तुम्हें मुबारक हो और गरीब नवाज का मैखाना हमें मुबारक। फरमाया पाक चीज पाक लोगों के लिए है और नापाक चीज नापाक लोगों के लिए। ये देखिए मलफूजात हकीमुल उम्मत, मुसन्निफ का नाम मौलवी अशरफ अली थानवी, मकतबे दानिश देवबंद, 24 से शुरू है इसका पिन कोड। कौन से? 24 से। अल्लाह अल्लाह। सफा इसका 322 है। कौन सा सफा है? 322। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो, फिर ना कहना कि हमें खबर ना हुई। सफा इसका 322, जिल्द इसकी तीसरी, किस्त इसकी 3, मलफूजात हकीमुल उम्मत। ये देखिए अल्लाह अल्लाह। मौलवी अशरफ अली थानवी क्या लिखता है? एक शख्स अपनी माँ से बदकारी किया करता था। माअल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। किसी ने कहा अरे खबीस ये क्या हरकत है? माअल्लाह। सरकार फरमाए तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इतना बड़ा अंधा था, माँ पे चढ़ बैठा। माअल्लाह बोलो जोर से। जब तो अच्छा, अरे खबीस ये क्या हरकत है? तो कहता है जब मैं सारा ही उसके अंदर था तो अगर मेरा एक जुज उसके अंदर चला गया तो हरज क्या हुआ? माअल्लाह, जोर से बोलो। आवाज जमात आई है, आवाज जमात आई है, आवाज जमात आई है। माँ पे सवारी गाटे बेशरम कहीं का जमात लिए फिरता। माअल्लाह। अच्छा, ये आगे लिखता ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है। क्या लिख रहा है मौलवी अशरफ अली थानवी? ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है। एक शख्स गू खाया करता था, दनादन आते जाओ खाते जाओ, दनादन आते जाओ। एक शख्स गू खाया करता था, मना करने पे कहा करता था जब ये मेरे ही अंदर था तो फिर अगर मेरे अंदर चला जावे तो क्या हरज है? मादन। ओ चिल्लो चिल्ली वालो, अब धान बोने की जरूरत नहीं है, अब गेहूं बोने की जरूरत। आता जाए खाते जाओ, आता जाए खाते जाओ। और अगर फिर भी भूख न मिटे तो इन सुन्नियों के यहाँ चले आना, इनके बहाने को साफ कर देना। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। ये पखाना खाना तुम्हें मुबारक हो और हुसैन का खिचड़ा खाना हम हुसैनियों को मुबारक। अल्लाह अल्लाह। लिहाजा जरूरत इसी बात की है मेरा भोला मुसलमान, ईमान बचा लिया इंशाअल्लाह। यहाँ भी बेड़ा पार, वहां भी बेड़ा पार। निकालो भैया जरा सा। अल्लाह अल्लाह। तज़किरतुर रशीद। अल्लाह अल्लाह। ये है किताब इनकी, ये है नहीं रहने दीजिए। अल्लाह अल्लाह। कल के लिए भी तो जरूरत पड़ेगी कुछ गरम मसाले की। सफा 242 है। कौन सा सफा है? 242। निकल बेईमान किधर गया? अल्लाह अल्लाह। सफा 242। किताब का नाम तज़किरतुर रशीद, मुसन्निफ का नाम आशिक इलाही मेरठी। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। हवाला गलत साबित करो तो असलम भाई से 25,000 नगद ले जाना। ये मुंह और मसूर की दाल, ये 25,000 तुम्हें मिलेंगे, ये तो गरीब नवाज के लंगर में खर्च होंगे। सुभान अल्लाह। सफा कौन सा है? 242। अल्लाह अल्लाह। लिखता है एक बार इरशाद फरमाया मौलवी जामिन अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियां मुरीद थी। मादल्लाह। जोर से बोलो मादल्लाह। कोई माली नहीं रह गया था कम बखत को, हैं? बहुत रंडियां मुरीद थी। एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे। मादल्लाह। जोर से बोलो। एक सुन्नी दाढ़ी मुंडा, एक सुन्नी बेनमाजी, मगर इंशाअल्लाह रंडी के मकान पे नहीं ठहरेगा। बोलो ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। क्यों? इसलिए कि ईमान है, और जब ईमान है तो हया। मगर इनका मुल्ला पीर हुई ठहर गया, जानमाज हुई, तस्बीह हुई, मुसल्ला हुई, दनादन। कहाँ आओ जाओ ही रुक जाओ।
रंडी के मकान पे ठहरे हुए थे। सब मुरीद मियां अपनी मियां साहब की जियारत के लिए हाजिर हुई। चलो पीर साहब आए हैं, चलो पीर साहब आए हैं। मादल्ला बोलो जरा, वो कैसा पीर लग रहा होगा। मादल्ला मादल्ला। मगर एक रंडी नहीं आई। सब आ गई मगर एक नहीं आई। मौलवी जामिन अली जलालाबादी ने पूछा फलानी क्यों नहीं आई। मादल्ला, जोर से बोलो। यानी इतना बड़ा कमबख्त था कि एक एक को गिन के रखा था। सब आ गई थी, एक ही रह गई थी। तो पूछता फलानी क्यों नहीं आई। रंडियों ने जवाब दिया मौली साहब हमने उससे बतेरा कहा चल मियां साहब की जियारत को। उसने कहा मैं बहुत गुनाहगार, बहुत रूसिया हूँ, मियां साहब को क्या मुंह दिखाऊं, जियारत के काबिल नहीं। मौलवी जामिन अली जलालाबादी ने कहा नहीं जी, तुम उसे हमारे पास जरूर लाना, दिल बड़ा बेचैन है। मादल्ला बोलो जोर से। ओ चिल्लो चिल्ली वालो, वो तुम्हारा पीर है जो रंडी के लिए बेचैन रहता है, और ये सुन्नी मुसलमान है जो मदीने वाले आका के लिए बेचैन रहा करता है। रंडी के लिए तड़पना तुझे मुबारक हो, मदीने वाले के लिए तड़पना हमें मुबारक। फरमाया पाक चीज पाक लोगों के लिए, नापाक चीज नापाक लोगों के लिए। अल्लाह अल्लाह। मौलवी जाम अच्छा उस चुनांचे रंडियां उसे लेकर आई। चल भाई, गंगा उल्टी बह रही, गंगा उल्टी बह रही। यहाँ तो मुरीदा तड़पी है पीर के लिए, यहाँ पीर तड़प रहा है मुरीदा के लिए। चल किस्मत पे नाच कर, पीर ने बुलाया। दनादान पहुंची। जब सामने आई तो मौलवी जामिन अली जलालाबादी ने पूछा भी तुम क्यों नहीं आई थी। मादल्ला बोलो जोर से। आवाज जमात आई है, आवाज जमात आई है। मादल्ला जोर से बोलो। मादल्ला मादल्ला। देख रहे हैं आप जरा तड़प बेचैनी। आप एक हिंदू से पूछो तो वो कहेगा मालिक पाक। क्या कहेगा? मालिक। आप एक पंजाबी से पूछो वो कहेगा मालिक पाक। मगर आप जरा देखिए कलमे कुफ्र देखिए, जरा भी सुकूत करेंगे आप काफिर हो जाएंगे। माज़अल्लाह, फौरन कहिए कि ये कलमे कुफ्र है। और सुनिए, तुम क्यों नहीं आई थी? पीर साहब ने पूछा तुम क्यों नहीं आई थी? अल्लाह अल्लाह, आज कहा जाता औरतों का मजार पे जाना कैसा? अरे ये तो बता, पीर साहब को रंडी का बुलाना कैसा? माज़अल्लाह। चुनान हजरत उसने कहा हजरत गुनाहों की वजह से जियारत को आती शर्माती हूँ, गुनाहों की वजह से जियारत को आती शर्माती हूँ। मौलवी जामिन अली जलालाबादी बोले भी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन, कराने वाला कौन? वो तो वही है। माज़अल्लाह। यानी जिना करने वाला खुदा, जिना कराने वाला खुदा। माज़अल्लाह। ओ चिल्लो चिल्ली वालो, वो तुम्हारा खुदा होगा जो जिना करने वाला होगा, जिना करने वाला जिना कराने वाला होगा। हमारा खुदा पाक, हमारा रसूल पाक, हमारे गौसे पाक, हमारे ख्वाजे पाक, हमारे वारिसे पाक, और उनका जो दामन थाम ले वो भी पाक हो जाए। अल्लाह अल्लाह। बड़ी तमन्ना से बुलाया था, बड़ी तमन्ना थी कि देखेंगे बहार फसले गुल हम भी, बड़ी तमन्ना से बुलाया था। रंडी ये सुनकर, अरे भोला मुसलमान जरा गौर तो कर ले, रंडी ये सुनकर आग हो गई, रंडी ये सुनकर आग हो गई और खफा होकर कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगरचे मैं गुनाहगार हूँ मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। सुभान अल्लाह। बड़ी तमन्ना से बुलाया था मगर उसने क्या किया? पीर साहब मैं तो तुम्हारे मुंह को मुतराले भी नहीं बनाऊंगी। सुभान अल्लाह। ओ चिल्लो चिल्ली वालो, जिस पीर को रंडी पेशाब घर न बनाए वो पीर तुम्हें मुबारक हो, और गौसे आजम जैसा पीर हमें मुबारक। बस एक जुमला सुन लो। अल्लाह अल्लाह। रंडी की समझ में आ गया, रंडी की, जोर से बोलिए, रंडी की समझ में, इन भड़वों की समझ में अभी तक नहीं आया।
ये अलिफाजातुल यौमिया, और मुसन्निफ का नाम मौलवी अशरफ अली थानवी, सफा इसका 127 है। कौन सा सफा है? 127, और जिल्द इसकी 5वीं है, किस इसकी दूसरी है। ऊपर लिखा कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल, ऐसा हल चलाया कि बराबर कर दिया। माज़अल्लाह बोलिए जोर से, माज़अल्लाह। मामू साहब पहली मर्तबा कानपुर तशरीफ लाए थे। किसके मामू? मौलवी अशरफ अली थानवी के। पहली मर्तबा कानपुर तशरीफ लाए थे। उनकी बातों से लोग बहुत मुतासिर हुए। अब्दुर्रहमान खान साहब मालिक मतबे निजामी भी उनसे मिलने आए और उनके हकायक व मारिफ सुनकर बहुत मुतकिद हुए। अर्ज किया, हजरत बात फरमाइए ताकि मुसलमान मुस्तफीद हों। मामू साहब ने इसका अजीब आजादाना रिंदाना जवाब दिया। मैं कहा और बात कहा। जब ज्यादा इसरार किया तो कहा, हाँ एक तरह से कह सकता हूं, उसका इंतजाम कर दीजिए। उसका, अब आप कह के बात कह दो, तकरीर कर दो हैं मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब से, तो वो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। वो कहेंगे भाई इंतजाम कर दीजिए। तो क्या इंतजाम करोगे? लाउड स्पीकर, तंबू, शामियाना, कनात, राड, बत्ती, बोलो यही है ना? तो बोले उसका इंतजाम कर दीजिए। हाँ, अब्दुर्रहमान खान साहब बेचारे मतीन बुजुर्ग थे, समझे ऐसा क्या तरीका होगा जिसका इंतजाम ना हो सके। ये सुनकर बहुत इश्तियाक के साथ पूछा, हजरत वो तरीक़े खास क्या है? वो तरीक़े खास क्या है? मौलवी अशरफ अली थानवी के मामू बोले, मैं बिल्कुल नंगा होकर, मादल्ला बोलो, दनादन, ऊपर भी गाय दनादन, मादल, अभी चड्डी बनी थी वो चड्डी भी गई। मैं बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूं, इधर उधर नहीं, बाजार में, इस तरह से कि एक शख्स तो आगे से मेरे अज़ुए तनासुल को पकड़कर खींचे और दूसरा पीछे से मकदमे उंगली करे, दनादन, और साथ में लड़कों की फौज हो और ये शोर मचाते जाए, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, तो हकायको मारी बयान करूंगा। माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। अभी एक जगह गया था इधर आपके वापी के पास, तो मैंने कहा है मेरे भोले मुसलमानों इस किताब को मंगा के रख लो। अभी बंबई में मिल रही थी, अब बंबई में नहीं मिल रही है, तो देवबंद से मंगा लो। इस किताब को मंगा के रख लो, काम आएगी काम। बोले क्या? मैंने कहा देखो कभी अगर ये आ जाए जमातिया, आइए आइए, बड़े दिनों से इंतजार था, आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, 1250 की किताब तुम्हारे मारे मंगा के रखी। ये है तबलीग होगी मगर इस किताब की रोशनी में होगी। इस किताब की उतार 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 बजाना उतार, और जहां चीनी करे फौरन किताब खोल के रख देना, और उसके बाद एक पकड़ रख लेना, जंबूर पिलास जिसे कहते, दनादन उसी से पकड़ के खींच के ऐसा खींच देना कि नसबंदी हो जाए, देवबंदी। उंगली नापाक करने की जरूरत नहीं है। ये भैंसा बैल जो मारते हो डंडा, इसी डंडे को तेल लगा के रखे रहे। मैंने कहा एक मतलब अगर तबलीग करा दी तो तौबा कर लेंगे, कभी तबलीगी जमात वाले उस गली में नहीं आए। और जहां चीखो क्या कर रहे हो, कहना जो तुम्हारे दादा ने करा वही हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। अल्लाह, हमाशुमा की बात नहीं है, ये मौलवी अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताब है, और ऊपर लिखा है कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल। अल्लाह ऐसे अक्ल के अंधों से हमें भी बचाए, आपको भी बचाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की